नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर के सहीफनिगारों और उनके अरकान खानदान के लिए आज पासपोर्ट सेवा केंद्र बेगमपेट पर पासपोर्ट मेले का इनेकाद अमल में आया, जिसमें अखबारात, न्यूज़ एजेंसियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने शिरकत की। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर विष्णुवर्धन रेड्डी ने इसका अफ्ताह किया। बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आवाम को पासपोर्ट की दरखास्तों के अदखाल के लिए फर्जी वेबसाइट से होशियार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोग, हत्ता के IAS और IPS ऑफिसर्स भी ऐसी फर्जी वेबसाइट्स के सबब परेशान हुए हैं। इन साइट्स पर दरखास्त गुजारों से 4 से 5 हज़ार रुपये वसूल किए जा रहे हैं और उनकी निजी मालूमात तक जमा कर ली जा रही हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ वजारत खारिजा के सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने पासपोर्ट की दरखास्त जमा कराएं। उन्होंने बताया कि नए पासपोर्ट अंदरून एक हफ्ता जारी कर दिए जा रहे हैं। చేసే ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్స్కి, ప్రభుత్వ అధికారులకి యూజువల్లీ వీకెండ్స్లో ఉంటే కన్వీనియంట్ ఉంటుందని ఈ మేళ చేశాము. మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇదే సందర్భంగా మీడియా మిత్రులతో నేను మాట్లాడుతూ 2 విషయాలు ప్రజల వద్దకి తీసుకువెళ్లాల్సిందిగా మనవి చేశాను. అందులో మొట్టమొదటి ఏమిటంటే, ఈ మధ్య మేము ఫేస్ చేసే ఛాలెంజ్లో ఒకటి ఫేక్ వెబ్సైట్స్ అనే ఇష్యూ లాస్ట్ 1 ఇయర్లో చాలా పెరిగింది. చాలామంది ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లానే ఉండే వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసేసి పాస్పోర్ట్ సేవలు అందిస్తామని ప్రజలకి మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు. ఆ వెబ్సైట్స్ ఆల్మోస్ట్ మన గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ లానే ఉంటుంది, కానీ వేరే డొమైన్ నేమ్లో ఉంటుంది. passportindia.com కానీ లేకపోతే passportindia.org కానీ అలా ఉంటుంది. సో ఈ ఫేక్ వెబ్సైట్స్ని సందర్శించి దానివల్ల అప్లై చేసి మోసపోవద్దని మీ ప్రజలకు మనవి చేస్తున్నాను. ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ వెబ్సైట్ ఫర్ పాస్పోర్ట్ అప్లికేషన్, అది మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ ఏమిటంటే passportindia.gov.in. ఇది ఒకటే ఆథరైజ్డ్ వెబ్సైట్, దీన్నే ఉపయోగించాలని మీ అందరికి మనవి. ఒక విధంగా పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్పోర్ట్ సేవ కేంద్రాలు రావడం వల్ల ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ఉంది. అదేవిధంగా ప్రొసీజర్లో కూడా చాలా సింప్లిఫికేషన్ తీసుకొచ్చాము. రూల్స్లో చాలా సరళీకృతం చేశాము. ఇవన్నీ ఒక వంతు ఉంటే, ఇంకో వంతు ఏమిటంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ వల్ల కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ మన హైదరాబాద్ రీజియన్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు. వాళ్ళు వేరే డాక్యుమెంట్స్, ఆధార్ కార్డు కానీ, అడ్రస్ ప్రూఫ్ కానీ, లేకపోతే బర్త్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఈ కొన్ని ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసేసి పాస్పోర్ట్స్ తీసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్తో కూడా మేము చాలా జాగ్రత్త వహిస్తున్నాము. ఆల్మోస్ట్ గత 2 సంవత్సరాల్లో 93 కేసెస్ మా నోటీస్కి వచ్చాయి. ఆ 93 కేసెస్లో కూడా మేము ఎమ్మటే పాస్పోర్ట్స్ ఇచ్చిన పాస్పోర్ట్స్ అన్నిటినీ రివోక్ చేశాము. ఇది ముందు అడిషనల్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఉండడం కోసమని మన హానరబుల్ ఎలక్షన్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు రీసెంట్గా జరిగిన పాస్పోర్ట్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ చిప్ బేస్డ్ పాస్పోర్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారనే డిసిషన్ తీసుకున్నారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసిషన్ని అనౌన్స్ చేశారు. మరి ఈ చిప్ బేస్డ్ పాస్పోర్ట్స్ ఈ సంవత్సరం ఎండ్ కానీ లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరం మొదటి హాఫ్లో కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ చిప్ బేస్డ్ పాస్పోర్ట్ రావడం వల్ల అడిషనల్ సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది మన పాస్పోర్ట్ బుక్లెట్లో. ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఆ చిప్లో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ట్యాంపర్ చేయడం ఇబ్బంది ఉంటుంది. దానివల్ల అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుందని మేము ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ డిసిషన్ తీసుకుంది. సో ఇది వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికీ ఈ విషయం తెలియజేస్తాము. మరి ఒకసారి పాస్పోర్ట్ మేళను సద్వినియోగం చేసినందుకు, సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. सेंट्रल जोन के तहत आने वाले बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस P. विश्वा प्रताप ने मीडिया को बताया कि हिंदी नगर में किए गए कार्डन सर्च में एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नरों के बशमूल 100 से ज़्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। घर घर तलाशी के दौरान एक रॉडी शीटर को हिरासत में लिया गया, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान थे। मकामी आवाम ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वक्तन फवक्तन ऐसे कार्डन सर्च पूरे जोन में मुनज़्ज़म किए जाएंगे।
बेगम बाजार पुलिस लिमिट्स में हिंदी नगर में हम कार्डिनेंस ऑपरेशन की। इसमें हमारे साथ हमारा एडिशनल डीसीपी, हमारा एसीपी और करीब 150 कांस्टेबल्स तक इसमें शामिल हुआ है। अभी तक रेजिडेंट से इंटरेक्ट हुआ है, दे आर क्वाइट हैप्पी। पुलिस का प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है, इसमें से दे आर क्वाइट हैप्पी। एंड व्हीकल वो नंबर प्लेट को टैम्पर कर रहे हैं, नंबर निकाल दे रहे हैं, उसको स्टिकर लगा रहे हैं। इसको ऐसा लोगों पे केस भी बना रहे हैं, स्पेशल क्रिमिनल केस भी बना रहे हैं। अभी एक नेबरहुड में एक राउडी है, वो राउडी चेक करे तो वो राउडी 2 महीने पहले वो इंतकाल हुआ उसका। और हमारा एसआई सेक्टर एसआई नेहरू है, वो बहुत पॉपुलर है, सब लोग इसको नाम पे बुला रहा है। ये पूरा एरिया में सीसीटीवी कवरेज, ये एसआई पब्लिक से मिलजुल के उसका कंट्रीब्यूशन से सीसीटीवी कवरेज भी करा है। नॉट मैनी इशूज़, ये जो माहौल है बहुत अच्छा है। ये व्हीकल्स जो चेकिंग में बनाए, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके उसको चालन करके हैंड ओवर व्हीकल्स बैक टू द ओनर्स। हबीबनगर के दबंग इंस्पेक्टर शिवा रेड्डी ने कल रात अपने इलाके में पेट्रोलिंग की और 3 बजे के करीब मुश्तबा हालत में घूमने वाले रोडी शीटों को पकड़कर उनकी फिंगरप्रिंटिंग ली। उन्होंने उनकी सरगर्मियों के बारे में मालूमात भी हासिल की। इनमें चोर खैसर, जंगली यूसुफ, लतीफ़ और माजिद वगैरह शामिल थे। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, ultrasound, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. असब्बल हल्के राजेंद्र नगर में टीआरएस की रुकनेसाजी की मुहिम चलाई गई। केएमआर ग्रुप के डायरेक्टर मूसा ने अपने 200 से ज्यादा साथियों के हमरा हुक्मरान पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ और दूसरे पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। मेंबरशिप के लिए राजेंद्र नगर आना हुआ, या मूसा भाई, यासीन भाई, सिद्दीकी भाई, सबसे मिलना हुआ। ये पूरे जितने भी लोग आज मेंबरशिप लिए सो सबको द बेस्ट विशेस बोल रहे हैं हमारा पार्टी की तरफ से। जो भी इलेक्शन है, जो भी सियासत है, तेलंगाना राष्ट्र समिति जीतने वाला है। अगर जीतना है तो ये मेंबरशिप ड्राइव अग्रेसिव जाना पड़ता है। जो भी मेंबरशिप बने वो अपना पार्टी को ओन करके, अपना पार्टी खुद का पार्टी बोल के काम करके, जो भी सियासत है उसमें जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। इसके ये टाइम पे सबको बेस्ट विशेस बोल के मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ सबसे कि जो भी इलेक्शन है सब अच्छा लड़ना, मिलजुल के लड़ना बोल के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज हमारे औरंगाबाद चौरस्ते पे जो आज केएमआर फाउंडेशन वाले जो सभ्यता कार्य जो कर रही हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे मूसा भाई, ऐसिन, मुकीद भाई, नागेंद्र ना, हमारे MP साहब आज आए, से इसको बहुत खुशी की बात है। पूरे पब्लिक को यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग, ये जो सभ्यता कर ले रहे हैं, ये वोट नमत कर ले रही है, तो इसमें 2 लाख रुपए पेंशन भी अपने को अगर कोई याद होगा, कुछ भी होगा तो 2 लाख रुपए उनको मिलता है। उसका देख के मतलब गवर्नमेंट में KCR साहब जैसे करे, हमारे कार्यकर्ता कहीं मर गया तो उनको कुछ भी कितना हेल्प करना बोल के हमारे मुख्यमंत्री साहब ये कर रही है। बहुत खुशी की बात है। यहाँ औरंगाबाद यहाँ ही नहीं, पूरे तेलंगाना में बहुत अच्छा आगे लेके चल रहे। पूरा विश्वास से आज वो बोल रहे हैं ये किए। परसों में हमारे MP साहब को, MLA साहब को भी कौन से पूरा अभी भी हमारे पूरे आजू बाजू में पूरे म्यूनसिपालिटी इलेक्शन में चल रहे। आप लोग देख रहे हैं पूरे TRS का हवा चल रहा है। कहीं भी गए तो TRS का है। उस बात से आज यहाँ पर जो लगा औरंगाबाद से बहुत खुशी की बात है और हम आगे लेके चल के बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। आपके तमाम कारनामों को देखते हुए ऑलरेडी मैं तो प्रकाश गौड़ साहब की निगरानी में TRS ज्वाइन किया था, लेकिन आज हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी को देखते हुए मैं अपने साथ 200 मेंबर को जो है अभी ज्वाइन किया है और कराया हूँ। और हमारी दावत पर हमारे
रंजीत रेड्डी साहब और प्रकाश गौड़ साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनका नागेंद्र साहब तशरीफ़ फरमा है, इनका बहुत मैं मशकूर हूँ। और तमाम मेहमानों के लिए खाने का भी इंतज़ाम है। नामपल्ली की अदालत ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहरा शेख और दीगर 2 अफराद के खिलाफ साल 2016 के हिसाबात का तख्ता पेश न करने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने उनको 30 अगस्त से कबल अदालत में पेश होने के अहकाम जारी किए। नोहरा शेख को कुछ दिन कबल कर्नाटक की पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि उनके खिलाफ बेल्लारी में पोंजी स्कीम के तहत सैकड़ों लोगों को धोखा देने का एक मुकदमा वहां दर्ज किया गया था। इसी दौरान ऑल इंडिया हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन ने इस स्कैम में मुलविस तमाम 33 अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जी श्रीदेवी ने TV9 के साबिक CEO रवि प्रकाश की जमानत अज कबल गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी। रवि प्रकाश पर अलंदा मीडिया के दस्तावेजात की जालसाजी और डायरेक्टरों के तकर्रुरात में धांधलियों के इल्जाम के तहत साइबराबाद की साइबर क्राइम ने एक मुकदमा दर्ज किया था और तहकीकात जारी हैं। रियासत के मतलाशा ने रोजगार के लिए खुशखबरी यह है कि हुकूमत ने महात्मा ज्योति बापुले के नाम से पसमानदा तबकात के लिए जो अकामती स्कूल कायम किए हैं उनमें 1698 मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए बहुत जल्द एलामिया जारी करने वाली है। इनके मंजमला 1071 ग्रेजुएट टीचर की जायदादें हैं, जबकि 119 फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स, लाइब्रेरियन की 110 और 36 प्रिंसिपल्स और 5 जूनियर असिस्टेंट की जायदादें शामिल हैं। BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहदेदार के मुताबिक तेलंगाना रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड को 3960 जायदादों को पुर करने की हिदायत दे दी गई है। अदालती अहकाम पर अमल आवरी में नाकामी पर तेलंगाना हाईकोर्ट के जज PV संजय कुमार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकम्मल माल राजेश्वर तिवारी को समन जारी कर दिया और उन्हें अदालती फैसले को रुबे अमल लाने में नाकामी की वजूहात बताने को कहा। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। दक्कन के मशहूर सूफी और बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद गैसो दराज ख्वाजा बंद नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 615वें उर्स तकारीब का गुलबर्गे में 19 जुलाई से आगाज होगा, जो 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। इस सिलसिले में हुकूमत और दरगाह कमेटी की तरफ से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। मुंबई के आज़मीन हज का पहला काफिला आज सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी वज़ीर अखिलत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी, सेंट्रल हज कमेटी के सदर नशीन चौधरी महबूब अली खैसर
और दूसरे इसमें शरीक थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया को बताया कि इस साल 2 लाख हिंदुस्तानी आज़मीन को हज की शहादत का मौका मिलेगा। इनमें 2340 खवातीन ऐसी हैं जो बिना महरम के सऊदी अरब को रवाना हो रही हैं। इन खवातीन का इंतखाब बगैर खुर्रे के अमल में आया। गर्मी तो हो रही है, लेकिन क्या करें, अब सहन करना पड़ती थोड़ी। 2 घंटे हो करीबन। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही है यहाँ। हाँ, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है बहुत, क्योंकि काफी दूर जाना है, सफर भी लंबा है अभी, और गर्मी का यह हाल है, अल्लाह करेगा। बैठे हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, गर्मी बहुत है यहाँ पर, गर्मी बहुत है यहाँ पर जी। करीब 6 बजे के बैठे हुए हैं हम, 6 बजे बैठे हुए हैं, और 6 से लेकर 8 बज गए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, 2 घंटे करीब हो गए हैं बैठे हुए। यहाँ बैठे हैं 6 बजे से। जो है हाजियों को उमूमन 6 घंटे पहले हर टर्मिनल पे बुलाते हैं, और आज भी हाजी 6 घंटे पहले ही आए हैं। यहाँ आने के बाद उनको हाजियों को नाश्ता कराया गया, और यहाँ थोड़ा सा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, पंखे वगैरह चल रहे थे, लेकिन हाजी साहिबान को वेलकम करने के लिए सारी ये जिम्मेदारान आते हैं, सब लोग मुबारकबाद देते हैं। एक इस्तकबालिया प्रोग्राम होता है, एक रस्म है जो चल रही है। थोड़ी सी तकलीफ हाजी को, हाँ, हाजियों को थोड़ी तकलीफ होती है, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है जो वेलकम का हर जगह पर पहले एम्बार्केशन पे सब लोग खुशी खुशी हाजियों को वेलकम करना चाहते हैं, और ये इसको कम से कम करना चाहिए, लेकिन अभी इसमें वक्त लग जाता है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। मानसून की सबसे ज्यादा बारिश के सबब यहाँ कई इलाकों में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हजारों लोगों को जिनके मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, महफूज मकामात को मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और आसाम में भी ज़बरदस्त बारिश से मामूल की ज़िंदगी ठप होकर रह गई है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 15 अमवात की इत्तलात मिली हैं।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। जम्मू में अल्लाहदगी पसंदों के बंद के पेश नज़र अमरनाथ यात्रा को आज मुअत्तल कर दिया गया। यात्रियों को वादी में कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इंग्लैंड में जारी क्रिकेट के वर्ल्ड टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला कल इतवार 14 जुलाई को मेजबान टीम और न्यूजीलैंड के माबैन होगा। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड की टीम हिंदुस्तान को हराकर फाइनल में दाखिल हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।